Hello my lovely soul, welcome to my channel. Today we are going to see your past, present and future. Before starting this video, I would like to inform you that if you are interested in personal reading, you can contact me through the email which I have mentioned in the description box of that video as well as in the channel description page. So returning to our topic, we have two groups, group number 1 and group number 2. Use your intuition and choose any group which you have joined into and I will meet you at group number 1. And before that, I would like to inform you that it's a general reading, so take only those messages which resonates with you and leave the rest. Hello group number 1. Today we are going to see your past, present and future. Before starting our topic, I would like to inform you that if you are interested in personal reading, you can contact me through the email which I have mentioned in the description box of the video as well as in the channel description page. Now moving forward to our topic, first we are going to see your past. So we have is King of Pentacles, Ace of Swords, Seven of Cups and Queen of Swords. In the past, your life was full of events. There is a possibility that some incidents occurred that opened your eyes. Maybe you were in an illusion about a situation or a person, but later you got clarity and the truth was revealed to you. You were able to make a correct and firm decision about what you wanted. Though this journey was difficult for you, but with courage and intelligence, you had successfully removed all the obstacles from your path. Your focus was on career. You had put all your energy into achieving financial security. You become a responsible person and practical person on whom your family and others can depend. For this group, a large number of you are already married and established in your lives. In your past, you may have many choices in front of you regarding your career, education or love life, but you had listened to your heart and made the decision. You are someone who is very honest, independent, clear, and can stay calm irrespective of the severity of any situation. You are vocal about whatever is on your mind. Now we are going to see your present. In present we have Ace of Wands, Knight of Swords, Seven of Pentacles and Wheel of Fortune. Right now you are going through a transformation process. For some of you, you are receiving the results of your past actions or karma. If you are seeing sudden changes in life, then know that it is in your destiny. In other words, you are destined for it. At the moment, you are in the planning phase. For some of my viewers, there is a possibility that you are putting your 100% effort into some work. It could be anything, like your job, business, study, or your dream project. But for you, it seems like you are not getting anywhere, or all your energy is wasting. But here, Spirit wants to tell you that you have to be constant with whatever you are doing, because though you can't see the result of your work, at the end, it will bring a smile to your face. At present, you may see slow growth with the task in your hands. For your long-term goals, you have to be very patient, as it will take time to show a fruitful result. Try to remember and encourage yourself that slow and steady wins the race. In this group, some of you are related with healthcare sector, or maybe you are in sports, or associated with the law field, teaching, or could be a financial advisor or architect. For those who are working on their communication skills, you are doing well. And for others, you are an excellent communicator. Your communication skills make you a confident person. At present, your energy is hyperactive, so sometimes you may get easily bored. Try to balance your energy, because your action without any prior thoughts can lead you to a difficult situation. Here, in this group, one of you is thinking about joining a horse riding school. Or maybe you are already doing it. In your present, you are very ambitious to achieve your desired goals. Recently, you may have started a new business or signed a new business deal. In your life, something new has started. For those who were looking for a love relationship, now new love has entered into your life. You are going to have a fiery chemistry with this person. One of you has recently gotten a tattoo on your hand. For a specific viewer, when you listen to this video, you may be on a trip via road or water. Before 2 or 3 days from watching this video, you have done a beautiful painting. Now, we are going to see some messages for you. So, group 1, what spirits want to tell you right now? We are going to see it. So, the first message for you is, if you want to go first, go alone. If you want to go far, go together. Next message for you is, anyone can deal with victory, only the mighty can bear defeat.
And the last message is that silence gives answers. Now we are going to see your future. Moving forward, we are going to see about your future. Let's see what it holds for you. So we have is 3 of Wands, 10 of Swords, 2 of Cups, and lastly the Hanged Man. In the future, you may have an argument with your lady. She could be your family member, girlfriend or friend, or maybe a superior at your workplace who will try to backstab you. You will feel betrayed or cheated by someone you trust. For some of you, right now you are doing something wrong. It could be anything. Maybe you are giving your energy and time to the wrong person who is not worthy of it. Or maybe you are on the wrong track, which in the future will cause you sorrow. There is a possibility that you may have to restart something you are doing right now. So take a break and analyze yourself. As I have mentioned about the argument and betrayal, it will impact your mental peace. You will feel yourself stuck in the current situation. Changes will occur in your life, which will make you uncertain, but you have to be patient during this time. You may feel like life has stopped somewhere. You have to accept the changes. For a special viewer, you may have to sacrifice something in order to achieve success. It could be your thinking pattern or habit, or maybe your lifestyle that no longer will serve you. But the good thing is that after this event, luck will be on your side. You will see that all your sorrow and difficulties will be removed from your life. For you, it will be like finally seeing the sun after a whole day of heavy rainfall and thunderstorms. For singles, love will enter into your life. In your personal and professional lives, you will also enjoy happy and peaceful relationships. In the case of a love relationship, personality-wise, your girlfriend or boyfriend may be different from you. You will have a good time with your friends. Your connection with your family, friends and colleagues will be based on mutual respect, love, friendship and acceptance. There is a possibility that your rivalry with a person will end and peace will be established between you two. Now we are going to see what will come into your life. So, what we have is, in your future, happiness, success and manifestation is coming towards your path. So, that was for today. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I will meet you in my next video. Till then, bye-bye. Hello group number 2. Today, we are going to see your past, present and future. Before starting this video, I would like to inform you that if you are interested in personal reading, you can contact me through the email which I have mentioned in the description box of this video as well as in the channel description page. Now, moving forward towards our topic, we are going to see your past. So, we have is Temperance card, the Hanged Man, Knight of Cups and lastly the Sun card. You are a great manifester. Your manifesting quality is so strong that in the past, your many wishes had come true. For a specific viewer, in the past, you had a big financial problem that you had very carefully handled. For some of you, when you were 5 or near 14 years old, a big event or change happened in your life. This incident triggered your emotions. Later, it changed your perspective about life, people, or relationships. From your past itself, you are someone who is in control of their emotions and adaptable to any changes. For a very specific viewer, in the past, a fire incident may have occurred at your home or near your home. For a small section of people, you have encountered a helpless situation, and later, with your patience and courage, you had successfully overcome from that situation. In this group, some people may have trust issues, and at the present time, you are trying to work on them. At an early stage of your life, your connection with your family members was not good, but after putting in lots of efforts, peace was restored among you. Well, group 2, here I am getting the vibe that some of you were playboys or playgirls in the past. Or maybe you had many admirers. You were someone who was very passionate about relationships as well as life. And for others, your past is full of success, joy, happiness and abundance. You had a content relationship with your family and friends. You had a blessed spiritual and material life. Now we are going to see your present. Now we will see your present. Let's see what is going on in your life.
So we have is 7 of Pentacles, 4 of Wands, 4 of Pentacles and 7 of Swords. At present, materially, you are quite comfortable. In the past, you worked for financial security and right now you are enjoying the fruits of your past work. In this group, if any one of you are dealing with financial difficulties, then the universe wants to assure you that all your financial problems will be solved. You will have money on your account. For those who are in a relationship, there's a possibility that one of you is becoming more possessive, jealous or controlling. But don't worry, it's not for all. It's for a very specific viewer. If any of you are having bad health conditions, then you need to relax your mind and body. Perhaps you are thinking about your past hardships or painful experiences and they are impacting your health. At present, someone whom you know, especially one of your friends or colleagues, is not honest with you. Or maybe he or she is trying to take advantage of your trust. So you need to be careful with whom you trust. If things starts to go beyond your control, then you may have to show them their true place. But the thing is that you have to be very cunning with whatever steps you will take to defeat them. You should not directly confront this person. Perhaps in the whole process, you will have to lose your relationship with this person. For others, in your personal life, maybe you are not putting your 100% efforts into whatever task you are currently doing. So you are not getting your desired results. Right now, you are planning your future. During this initial stage, you may see slow growth, but don't lose hope. For your long-term goals, if you are someone who is putting his or her complete energy into their dream project but isn't seeing any progress, then be persistent with your try, because gradually you will see the development. For some of you, there's a chance that you are thinking about buying a property, or maybe recently you have bought a new house. If not, then your dream house is complete and you are ready to move into it. There's a chance that a few days or a week earlier, you have successfully completed one of your projects. On today's date, you have reached a certain position regarding personal growth as well as material prosperity. Your time with your family is full of happiness and peace. For some of you, good news is on the way. You and your family both are protected by the divine. In this group, for some of you, your home is near a hill station or is surrounded by beautiful natural ambience. Now we will see some messages for you. So the first message for you is, be patient when you sit in the dark. The dawn is coming. The next message for you is, quiet the mind and the soul will speak. And lastly, we have, remember that hope is a powerful weapon even when all else is lost. Now we are going to see your future. So let's start and see what is ahead for you. So we have is 10 of Wands, 4 of Pentacles, 9 of Swords and Queen of Cups. In the future, you are going to be very busy. There will be too much work for you. Maybe you will take a lot of responsibility on your shoulders. There's a chance that at your workplace you will get promoted and have to handle some new responsibilities. So you will feel exhausted. For others, those who are married, thoughts about your child or a family member from your maternal home will give you tension. Here, for you guys, I'm sensing many different possibilities. In this group, one of you is desperately waiting for a particular news, and you are becoming very anxious. Some of you will think too much about your study, future or career. For a small section, there is a possibility that others will give away their responsibility to you. All these events will drain your energy and you will be stressed. In your personal or professional life, you will have a difficult job to complete. Maybe the time limit will be there and you will be so indulgent with this task that it will affect your mind and body. To complete the task, you may sacrifice your sleep, food or maybe your leisure time. A situation may arise where you will understand that some commitments have to be ended. Financially, you will overcome all your problems. You will gain material stability and security. You will no need to worry about your bank accounts as enough money will be there so you can use it as per your wish. You will get the chance to interact with people at social events. Maybe near future you will be invited to some ceremonies.
You will get a good news from your family or friends. One of you will go to Goa or a trip to the beach. And for some others, you will visit an island and enjoy your time. So, travel is coming for you. In your love life, a person will come to you to offer his or her love, loyalty, and lifelong commitment. Now, we are going to see some extra messages about what is coming to your life. So, what is coming for you is prosperity. Next is good luck. Wow, guys. And last is wish fulfillment. Wow, that's great. So, that was for today. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I will meet you in my next video. Till then, bye bye. हेलो माय लवली सोल, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई पर्सनल रीडिंग के लिए इंटरेस्टेड है तो आप मुझे ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी का एड्रेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन पेज पे भी आपको वो ईमेल आईडी अवेलेबल होगा। तो हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, सो आप वही मैसेजेस ली जो आपके साथ रिजोनेट करते हो और बाकी को छोड़ दे। और हमेशा की तरह हमारे पास 2 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। आप अपना इंट्यूशन यूज़ करके इनमें से कोई एक ग्रुप चूज़ कर सकते हैं और मैं आपको ग्रुप नंबर 1 में मिलती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आज का हमारा टॉपिक है आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ, अगर आप में से कोई पर्सनल रीडिंग के लिए इंटरेस्टेड है तो आप मुझे ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उस ईमेल आईडी का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आप वहाँ से ईमेल आईडी का डिटेल्स ले सकते हैं और साथ ही साथ आपको इस चैनल के जो पेज है उस वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अभी हम देखेंगे कि आपके पास्ट में क्या हुआ था। तो हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। पास्ट में आपके साथ आपके लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स हुए और यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसने आपकी आंखें खोली। मे बी आप किसी सिचुएशन को लेके या फिर किसी इंसान को लेके आप इल्यूशन में थे और बाद में आपको उस चीज़ को लेके क्लियरिटी मिली और सच्चाई आपके सामने आई। और इस इंसिडेंट के बाद आप जो चाहते थे ना, जो डिसीजन आप लेना चाहते थे, वो डिसीजन आप सही तरीके से ले पाए। भले ही आपके लिए ये जर्नी डिफ़िकल्ट रही हो, लेकिन आपने अपने इंटेलिजेंस और करेज के साथ सारे ऑब्स्टिकल्स अपने लाइफ से सक्सेसफुली रिमूव किया है। इस ग्रुप के लिए मुझे ये लग रहा है कि पास्ट में आपका जो फोकस है वो आपके करियर पे था। आपने अपनी पूरी एनर्जी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए लगा दी है। अपने पास्ट से ही आप एक रिस्पॉन्सिबल और प्रैक्टिकल पर्सन हो और एक ऐसे इंसान हो जिसके ऊपर आपकी फैमिली और या फिर आपके फ्रेंड्स ट्रस्ट कर सकते हैं या फिर वो आपके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। और इस ग्रुप के लिए यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ माई व्यूअर्स ऑलरेडी मैरिड है और वो अपनी लाइफ में बहुत एस्टैब्लिश्ड है। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास्ट में आपके सामने बहुत सारे चॉइसेस थे, करियर को लेके या फिर एजुकेशन और या फिर लव लाइफ को लेके। लेकिन भले ही आपके सामने कितने भी चॉइसेस क्यों ना थे, लेकिन आपने अपनी दिल की बात सुनी और एक जो आपके लिए बेस्ट था आपने वो डिसीजन लिया। आप एक ऑनेस्ट और इंडिपेंडेंट इंसान हो, आपका माइंड बहुत क्लियर है और आप एक ऐसे इंसान हो जो चाहे परिस्थिति कितनी गंभीर क्यों ना हो लेकिन आपको शांत रहना आता है। और आप एक ऐसे इंसान हो ना जो आपके दिल में जो है ना या फिर आपके माइंड में जो है आप वही ओपनली सबके सामने बोलती हो, या फिर ये कहूँ कि आप बहुत वोकल हो। नाउ हम अभी आपके प्रेजेंट को देखेंगे। तो हमारे पास है एस ऑफ वंस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। राइट नाउ आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर रहे हो। यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए आपको अपने पास्ट एक्शंस का रिजल्ट मिलने वाला है या फिर आपके कर्मा के अनुसार आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ सडन चेंजेस देख रहे हो ना, तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है कि वो चेंजेस आपकी डेस्टिनी में है। और दूसरे शब्द में ये कहूँ कि आप ऑलरेडी उस चेंजेस के लिए डेस्टाइंड हो। प्रेजेंट मोमेंट में आप अपने लाइफ को लेके प्लानिंग फेज पे हो सकता है कि आप किसी काम में अपना 100% एफर्ट्स पुट कर रहे हो। वो काम कुछ भी हो सकता है, शायद
या फिर आपकी जॉब हो सकती है, आपकी बिजनेस, स्टडी, या फिर कोई आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पे आप अपना 100% एफर्ट पुट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप चाहे जितने भी मेहनत क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। शायद आपको अभी ऐसा लग रहा है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी जिस काम में आप अपना एफर्ट डाल रहे हो उसका कोई नतीजा आपको नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पे स्पिरिट आपसे ये कहना चाहती है कि आप जो काम कर रहे हो ना अभी, जिस पे अपना एफर्ट डाल रहे हो, आप उसी पे कांस्टेंट रहो। भले ही आपको अभी उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन आप ये अश्योर रहो कि बाद में जाके आपको वो चीज़ आपको स्माइल देगी, आपको खुशी महसूस करवाएगी। ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ में जो काम है उसमें आपको स्लो ग्रोथ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर आपके कोई लॉन्ग टर्म गोल्स है तो उसके लिए आपको पेशेंस होना पड़ेगा, आपको पेशेंट रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लॉन्ग टर्म गोल में आपको रिज़ल्ट देखने के लिए अभी भी वक्त है। और इस वक्त के दौरान आप कोशिश कीजिए कि आप खुद को मोटिवेट रख सके या फिर इनकरेज कर सके। अगर आपको खरगोश और कछुए की कहानी याद है तो आपको ये भी याद होगा कि जो स्लो और स्टेडी होता है अपने वर्क में, सक्सेस उन्हीं को मिलता है। और इस ग्रुप में कुछ में व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं कि आप किसी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हो सकते हो, और मे बी आप स्पोर्ट्स में हो सकते हो, और मे बी आपका काम लॉ फील्ड से जुड़ा हुआ है। आप टीचर हो सकते हो या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र, आर्किटेक्ट, इनमें से कुछ भी हो सकते हो आप। और इस ग्रुप में जो लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क कर रहे हो तो आप अच्छा कर रहे हो, और बाकी लोगों के लिए आप एक एक्सीलेंट कम्युनिकेटर हो, और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आपको बहुत कॉन्फिडेंट बनाता है। प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा हो सकता है कि आपकी एनर्जी बहुत हाइपर एक्टिव है, सो समटाइम आपको ऐसा फील होता है कि आप बहुत बोर हो जाते हो। सो यहाँ पे मैसेज ये है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर बिना सोचे समझे आप कुछ करने के लिए जाओगे तो उसका नतीजा आपको बहुत परेशान करने वाला है। यहाँ पे आप में से कोई हॉर्स राइडिंग स्कूल ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा है, या फिर आपने ऑलरेडी हॉर्स राइडिंग स्कूल ज्वाइन किया है रिसेंटली, और प्रेजेंट मोमेंट में ना आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल की है और आप अपने डिज़ायर गोल को अचीव करने के लिए बहुत एम्बिशियस हो। यहाँ पे कुछ में व्यूअर्स के लिए रिसेंटली आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, या फिर आपने कोई न्यू बिजनेस डील साइन की है, और आपके लाइफ में ना कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। और जो लोग अपने लाइफ में लव रिलेशनशिप को चाहते हो, या फिर जो लोग लव के लिए वेट कर रहे हो, आपके लाइफ में ऑलरेडी लव एंटर कर चुका है, और इस पर्सन के साथ आपकी जो केमिस्ट्री होगी वो बहुत फायरी केमिस्ट्री होगी। और आप में से किसी ने रिसेंटली अपने हाथों पे टैटू बनवाया है। और यहाँ पे वेरी स्पेसिफिक व्यूअर्स के लिए, जब आप ये वीडियो सुनोगे ना तो आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो वाया रोड और वाटर के, इस वीडियो को देखने से 2 या 3 दिन पहले आप में से किसी ने एक ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाया है। नाउ हम अभी कुछ मैसेजेस देखने के लिए जा रहे हैं। सो हम अभी देखेंगे कि स्पिरिट आपसे क्या बोलना चाहती है। सो आपके लिए फर्स्ट मैसेज ये है, जीत का जश्न तो हर कोई बना सकता है, लेकिन असल इंसान वही है जो हर को भी सहन कर सकता है। दूसरा मैसेज ये है, अगर आप अपनी लाइफ में फर्स्ट जाना चाहते हो तो आपको अकेले जाना चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हो तो आपको किसी के साथ जाना चाहिए। और आपके लिए लास्ट मैसेज ये है, जब आप शांत में रहोगे ना तो आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा। अभी हम आपके फ्यूचर को देखेंगे। तो हमारे पास है 3 ऑफ वंस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, 2 ऑफ कप्स। सो फ्यूचर में आपका किसी लेडी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है। यहाँ पॉसिबिलिटी ये है कि वो लेडी आपकी कोई फैमिली मेम्बर, आपकी गर्लफ्रेंड, या फिर आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, और मे बी वो आपके वर्क प्लेस पे आपकी कोई सुपीरियर हो सकती है जो आपको चीट करने की कोशिश कर सकती है। इस सिचुएशन के बाद आपको बिट्रेल जैसा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि जिस पे आपने ट्रस्ट किया उस इंसान ने आपको धोखा दिया या फिर आपको चीट किया है। और यहाँ पे कुछ में व्यूअर्स के लिए, आप अपने लाइफ में इस वक्त आप कुछ गलत कर रहे हो। ऐसा हो सकता है वो गलती आप किसी भी कोई कुछ भी हो सकता है वो गलती में भी। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप अपनी एनर्जी या फिर अपना टाइम एक गलत इंसान पे दे रहे हो जो आपके टाइम और आपकी एनर्जी की वर्थ नहीं है, और मे बी आप किसी रॉन्ग ट्रैक पे हो और जो जाके आपके फ्यूचर में जाके आपको तकलीफ़ दे सकती है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि करेंटली आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो फ्यूचर में जाके आपको फिर से रिस्टार्ट करना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने पहले आर्ग्यूमेंट या बिट्रेल के बारे में बोला, तो वो आर्ग्यूमेंट या फिर वो धोखा आपके मेंटल पीस को अफेक्ट करेगा।
ऐसा लगेगा कि आपके करंट सिचुएशन में आप स्टक हो गए हो और आपके लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आएंगी जो आपको अनसर्टेन कर सकती है आपकी सिचुएशन को लेके, या फिर आपकी लाइफ के जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन पे आपका लाइफ जा रहा है, वो सभी चीज़ों के बारे में सोच के आप अनसर्टेन हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये लग सकता है कि आपकी लाइफ कहीं पे जाके रुक गई है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंजेस होगा जो ना चाहते हुए भी शायद आपको एक्सेप्ट करना पड़े। लेकिन यहाँ पे वेरी स्पेसिफिक व्यूअर्स के लिए यह मैसेज है कि आपको अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, और वो शायद ऐसा भी हो सकता है जो आपकी जो थिंकिंग पैटर्न है या फिर आपकी हैबिट या फिर आपकी लाइफस्टाइल आपको बदलना पड़ेगा अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या फिर अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। इसमें भी ये पॉसिबिलिटी है कि शायद अभी आप एक से लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो जो बाद में जाके आपको सर्व नहीं करने वाली। बट अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है, भले ही आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, लेकिन बाद में जाके लक आपके साथ होगा और आप देखोगे कि आपके जितने भी डिफ़िकल्टी है या फिर सोरो है वो सभी आपके लाइफ से दूर हो जाएंगे। उस पल आपको ऐसा लगेगा कि बहुत भारी बारिश और तूफान के बाद आप पहली बार सूरज को देख रहे हो। और सिंगल्स के लिए लक आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपका जो रिलेशनशिप होगा लोगों के साथ वो एक पीसफुल और हैप्पी रिलेशनशिप होगा। और लव रिलेशनशिप के मामले में आपकी जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है वो आपसे थोड़े डिफरेंट होंगे पर्सनालिटी वाइज। आपका अपनी फैमिली के साथ या फिर अपनी फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा बॉन्ड होगा और आप अच्छे टाइम स्पेंड करोगे उन लोगों के साथ। और अपने वर्क प्लेस पे भी आपका रिलेशन अपने कलीग्स के साथ एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट रहेगा। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि आपके किसी के साथ जो पुरानी दुश्मनी है वो ख़त्म होने वाली है और आप दोनों के बीच पीस एस्टैब्लिश होगा। नाउ हम अभी देखेंगे कि फ्यूचर में आपके लाइफ में क्या आने वाला है। सो फ्यूचर में आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है, आपका कोई मैनिफेस्टेशन रियलिटी में बदलने वाला है और लास्ट में आपके लाइफ में सक्सेस आने वाला है। तो ये था आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, आज का हमारा टॉपिक है आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ, अगर आप में से कोई पर्सनल रीडिंग के लिए इंटरेस्टेड है तो आप मुझे ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है इस वीडियो के, और साथ ही साथ इस चैनल के डिस्क्रिप्शन पेज पे भी आपको मिल जाएगी। तो अब हमारे टॉपिक की तरह हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके पास्ट के बारे में। तो हमारे पास है टेम्परेंस कार्ड, द हैंगमैन, नाइट ऑफ कप्स एंड लास्टली द सन कार्ड। आप एक ग्रेट मैनिफेस्टर हो। आपके मैनिफेस्टेशन क्वालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपने देखा होगा अपने पास्ट में आपके बहुत सारे विशेस रियलिटी में बदलते हुए आपने देखा होगा। यहाँ पे एक वेरी स्पेसिफिक व्यूवर्स के लिए, पास्ट में आपके साथ एक बिग फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ था और आपने वेरी केयरफुली उस सिचुएशन को हैंडल किया था। जैसा कि एक जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ और एनर्जीज मुझे सेंस हो रही है। तो कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पे जब आप 5 साल के थे या फिर 14 साल के आसपास आपकी लाइफ में कोई बड़ा बिग इवेंट हुआ था या फिर आपकी लाइफ में कोई चेंज हुआ था और उस इंसिडेंट ने आपकी इमोशंस पे बहुत ट्रिगर किया, और बाद में जाके उस घटना के बाद आपके जो पर्सपेक्टिव है लोगों को देखने का, लाइफ को देखने का, या फिर किसी भी रिलेशनशिप को देखने का जो नज़रिया है आपका वो बदल गया। पास से ही आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखना है आपको पता है। किसी भी चेंज के लिए आप खुद को रेडी रखते हो। और यहाँ पे वेरी स्पेसिफिक व्यूवर्स के लिए, पास्ट में आपके घर में या फिर आपके घर के आसपास कोई फायर इंसिडेंट हुआ था। आप में से किसी ने अतीत में कोई हेल्पलेस सिचुएशन का फेस किया था और बाद में जाके अपने करेज के साथ और पेशेंस से अपने उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाला। और इस ग्रुप के लिए मुझे यहाँ पे ये महसूस हो रहा है कि आप में से कुछ लोगों को यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ है और प्रेजेंट मोमेंट में आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो। आपके लाइफ के अर्ली स्टेज पे आपका रिलेशन अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छा नहीं था और बाद में आपने बहुत एफर्ट्स डाले ताकि आपका रिलेशन अपने फैमिली के साथ अच्छा हो, और बहुत कड़ी मेहनत के बाद कहूँ आपका रिलेशन एक अच्छे स्टेज पे आके पहुँचा। और इस ग्रुप में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब अपने पास्ट में कुछ लोग यहाँ पे प्ले बॉय और प्ले गर्ल रहे हो। रिलेशनशिप्स को लेके या फिर अपनी लाइफ को लेके आप बहुत पेशनेट हो, और बाकी लोगों के लिए आपका पास्ट सक्सेस, जॉय, हैप्पीनेस और एबंडेंस से गुजरा है। आपका रिलेशन अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा था, और स्पिरिचुअल लेवल या फिर मटेरियल लेवल पे भी आपने एक बहुत अच्छी लाइफ गुजारी है। तो अभी हम आपके प्रेजेंट को देखेंगे। तो हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वंस, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्टली 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो प्रेजेंट में आप फाइनेंशियली या फिर मटेरियली
क्वाइट कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो। पास्ट में अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपने बहुत हार्ड वर्क किया है और राइट नाउ अभी उस हार्ड वर्क का फ्रूट इंजॉय कर रहे हो। और इस ग्रुप में अगर आप में से कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज से डील कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये अश्योर करना चाहता है कि आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। उन लोगों के लिए जो लोग रिलेशनशिप पे है, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आप में से कोई आपका लव इंटरेस्ट या फिर आप राइट नाउ आप में से कोई पॉजिटिव जेलस या फिर कंट्रोलिंग नेचर के बनते जा रहे हो। अगर आप में से किसी को अभी हेल्थ इश्यूज़ है या फिर हेल्थ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है, आपके माइंड को और बॉडी को रिलैक्स देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ है शायद आप अपने पास्ट हार्डशिप के बारे में या फिर अपने पास्ट में अगर आपने कुछ पेनफुल एक्सपीरियंस फेस किया है तो उसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो और वो सारी सोच आपकी हेल्थ पे इम्पेक्ट कर रही है। और प्रेजेंट मोमेंट में एक ऐसा इंसान है जो आप जानते हो, स्पेशली आपके कोई फ्रेंड हो सकता है या फिर आपके कोई कलीग्स हो सकता है, लेकिन वो इंसान अभी आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है और मे बी वो इंसान आपके ट्रस्ट का एडवांटेज ले रहा है। सो आपको यहाँ पे केयरफुल होने की ज़रूरत है। आपको खुद पे ये डिसाइड करना है कि आप किस पे ट्रस्ट करोगे। अगर सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर जाए तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है कि आपको उस इंसान को उसकी असली जगह दिखाना पड़ सकता है। लेकिन जो भी करो, यहाँ पे चीज़ ये है कि आपको बहुत कनिंग होना पड़ेगा, आपको बहुत चालाकी से उस इंसान को डिफीट करना पड़ेगा। आपको उस इंसान को डायरेक्टली कॉन्फ्रंट नहीं करना चाहिए। और इस प्रोसेस में शायद ऐसा हो सकता है आपको कुछ इस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकता है। ये भी यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज़ है। और बाकी लोगों के लिए शायद पर्सनल लाइफ में आप अपने किसी वर्क पे अपना 100% एफर्ट नहीं डाल रहे हो और जिसकी वजह से आपको आपका मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। राइट नाउ आप एक ऐसे स्टेज पे हो जहाँ पे आप अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो और इस इनिशियल स्टेज में शायद आपको स्लो ग्रोथ दिखाई दे, लेकिन आपको अपना होप को नहीं लूज़ करना चाहिए। और जहाँ तक लॉन्ग टर्म गोल की बात है, अगर आप ऐसे इंसान हो जो अपना 100% एफर्ट डाल रहे हो किसी प्रोजेक्ट पे, कोई आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पर आप 100% वर्क कर रहे हो लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है या फिर आपको कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप उस काम पे परसिस्टेंट रहिए, आप बने रहिए। भले ही आपको अभी उसका रिजल्ट नहीं दिखाई दे, लेकिन ग्रेजुअली जाके वो काम डेवलप होगा। और यहाँ पे आप में से कुछ लोग कोई नया प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हो और शायद ऐसा भी हो सकता है कि रिसेंटली आपने नया घर खरीदा हो। अगर आप ऐसा भी नहीं है तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपका ड्रीम हाउस कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्दी आप अपने घर में मूव करोगे। कुछ लोगों के लिए कुछ दिन पहले या फिर एक वीक के पहले आपने कोई अपना प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। आज की तारीख पे आप एक ऐसे मुकाम पे पहुँचे हो जहाँ पे आपका पर्सनल ग्रोथ और साथ ही साथ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी हुआ है और आपका रिलेशन अपने फैमिली के साथ बहुत हैप्पी और पीसफुल है। कुछ में व्यूवर्स के लिए बहुत जल्द आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाला है और जो लोग यहाँ अपने फैमिली को लेके या फिर खुद को लेके टेंशन में हो तो यहाँ पे ये यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है कि आप और आपकी फैमिली दोनों ही डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। और कुछ में व्यूवर्स के लिए ये हो सकता है कि आपका घर किसी हिल स्टेशन के आसपास है या फिर आपका घर जहाँ पे है ना वहाँ से आसपास का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। तो हम आपके लिए कुछ मैसेजेस देखेंगे। तो पहला मैसेज आपके लिए है, क्वाइट द माइंड एंड द सोल विल स्पीक। जब अपने मन को शांत रखोगे उसी वक्त आपका सोल आपसे बात करेगा। नेक्स्ट है, रिमेंबर दैट होप इज़ अ पावरफुल वेपन इवन व्हेन ऑल एल्स इज लॉस्ट। आप ये बात याद रखिए कि जब आपके पास कुछ नहीं होता तो होप ही आपके पास सबसे पावरफुल वेपन होता है। और लास्ट मैसेज है, बी पेशेंट व्हेन यू सिट इन द डार्क, द डॉन इज़ कमिंग। जब आप अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे वक्त पे हो ना, उस वक्त अपना पेशेंस रखिए क्योंकि बहुत जल्द आपकी लाइफ में सुबह आने वाली है और हम अभी आपके फ्यूचर को देखेंगे। तो हमारे पास है 10 ऑफ वंस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लास्टली क्वीन ऑफ कप्स। तो फ्यूचर में आप बहुत बिजी रहने वाले हो। शायद ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा वर्क होगा करने के लिए और मे भी कुछ लोगों के लिए आपके कंधे पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे ये है कि आपके वर्क प्लेस में आपका शायद प्रमोशन हो सकता है और जिसकी वजह से आपके पास बहुत सारी न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगी। उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके आप बहुत एडजस्टेड फील कर सकते हो। और उन लोगों के लिए जो यहाँ पे मैरिड है तो शायद आपके बच्चे के बारे में या फिर आपके मैटरनल होम से किसी फैमिली मेम्बर के बारे में सोच के आपको कोई टेंशन होगा।
और इस ग्रुप में आप में से कोई डेस्परेटली किसी न्यूज़ के लिए वेट कर रहे हो और उस न्यूज़ की जो आपका वेटिंग है ना, वो वेटिंग आपको एंशियस बना रहा है। आपका सिचुएशन अभी ऐसा है कि कब आपको वो न्यूज़ मिलेगा, आप बहुत बेसब्री से उस न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हो। और बाकी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप अपने फ्यूचर को लेके या फिर करियर और स्टडी को लेके बहुत सोचोगे, ज़रूरत से भी ज़्यादा सोचने वाले हो फ्यूचर में जाके। यहाँ पे एक स्मॉल सेक्शन पीपल के लिए दूसरे लोग उनके काम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो आप पे डालेंगे, या फिर ऐसा सिचुएशन होगा कि वो अपना काम आपसे करवाएंगे। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और इन सभी इवेंट्स की वजह से आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो सकता है। आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपको कोई डिफ़िकल्ट जॉब मिल सकता है जिसे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। शायद ऐसा हो सकता है उस काम में आपका टाइम लिमिट होगा कि इस वक्त के अंदर आपको वो काम या फिर वो टास्क आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। सो आप इतनी इंडल्ज हो जाओगे उसमें, आप इतना उस काम में अपना डेडिकेशन के साथ इतना अपने फोकस डालोगे कि आप वो सभी आपके माइंड और बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। में भी उस काम को कंप्लीट करने के लिए आप शायद अपना स्लीप, फूड या फिर अपना जो लेजर टाइम है वो सब सेक्रीफाइस कर सकते हो। इन फ्यूचर में आपके सामने एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे आपको ये रियलाइज़ होगा कि कुछ कमिटमेंट आपको अभी एंड करना चाहिए, या फिर कुछ वादे जो आपको सर्व नहीं करते, जिन वादों पे अमल करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, उन वादों को आपको तोड़ देना चाहिए। और फाइनेंशियली अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करोगे ना, तो उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकलोगे और अपनी लाइफ में आप मटेरियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों को ही महसूस करोगे। इन फ्यूचर आपको पैसों को लेकर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास इतना पैसा होगा कि आप उसको कैसे खर्च करो वो आप पे डिपेंड करेगा। कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए आपके सामने ये पॉसिबिलिटीज़ है कि बहुत जल्द आप कोई सोशल इवेंट पे इंटरेक्ट करोगे लोगों के साथ। में भी नियर फ्यूचर में आपको किसी सेरेमनी के लिए इन्वाइट किया जा सकता है और आपके फैमिली से या फिर आपके फ्रेंड से आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाला है। जैसे कि ये वीडियो जनरल है तो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ में दिखाई दे रहा है मुझे। तो कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए आप शायद गोवा जा सकते हो इन नियर फ्यूचर, और मे भी आप कोई ट्रिप लेने वाले हो किसी बीच के आसपास। दूसरे लोगों के लिए आप कोई आइलैंड विजिट करोगे और अपना टाइम वहाँ पे एंजॉय करोगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। सो डेफिनेटली ट्रैवल आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ रहा है। और जहाँ तक आपकी लव लाइफ के बारे में बात करें तो यहाँ पे कोई नया इंसान आपके लाइफ में आएगा जो अपना लव, लॉयल्टी और अपना लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट आपको देने के लिए रेडी है। नाउ हम अभी कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके लिए देखेंगे कि इन फ्यूचर आपके लाइफ में क्या नया आने वाला है। तो फ्यूचर में आपका लक आपके साथ देने वाला है, या फिर ये कहूँ कि गुड लक आपके लाइफ में आ रहा है। और आपकी जितने भी विशेस हैं ना वो सब फुलफ़िल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। और लास्ट में आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आ रही है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। तो आज के लिए इतना ही था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।